सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतना आपने ब्यूटीफुल एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑन बिहाफ ऑफ DIC, I, Director of DIC, welcome our Member Secretary, DAF, Mrs. Upma Srivastava, to the one-day Buddhist conference on revisiting truth, morality, ethics in Buddhism. Mrs. Upma Srivastava, our MSDF, is at present Additional Secretary in Ministry of Social Justice and Empowerment. Ma'am is an IAS officer of 1988 batch. She has held various important assignments in the past, which includes a prestigious stint with DOPT and also with Ministry of Agriculture before joining Ministry of Social Justice and Empowerment. Now I welcome our keynote speaker, Professor Dharamdatta Chaturvedi ji. Sir is the head of Department of Sanskrit and Shabd Vidya at Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi. Doctor has enriched both the field of academics and research with his rich and resourceful contribution. Having completed his PhD in Dhatvat Mimamsa, his interest and knowledge surpasses beyond Sanskrit, as we find him exploring the shores of Buddhism as well as Hindi and English literature. He is keenly interested in undertaking critical editing of scriptures, besides having keen interest in Sanskrit poetic literature and Buddhist literature, Jatakas and Niti Shastra, which is vividly reflected in his writings and research. His creative finds best reflection in 92 publications, which includes research paper, articles, and poems. He has penned down around 26 books so far. He has graced the occasion at various important podiums, sharing his knowledge, delivering lectures, undertaking research projects, and mentoring research scholars. He has been awarded with various prestigious awards by the government. Few of them are Uttar Pradesh Sanskrit Academy Granth Puraskar in 1992. Sir also received Sanskrit Seva Sammanam SSVV Varanasi and Vikram Kalidas Puraskar, which was conferred by Haryana Governor Shri Kaptan Singh Ji onto him. Sir, I once again warmly welcome you to our conference. Now, may I request our guest of honor, Member Secretary, DAF, to kindly give out opening remarks. Thank you so much. Good morning, Namaskar. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. First of all, congratulations to the DIC team for organizing a conference on this kind of a topic, which is these days sort of becoming rarer and rarer in human consciousness and sentiments. So we really need to focus on these issues like compassion, ethics, morality from time to time, just to remind ourselves as to what is the essence of a human being, what is the truth of this human life. I welcome the chief guest today and thank him profusely for sparing his time. I am very keen to hear him and shall continue to log in till he speaks. Thank you very much. And that's all. You can start. Thank you so much. धन्यवाद मैडम, सम्माननीय मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर लाल सिंह जी, संस्थान के निदेशक विकास त्रिवेदी जी, हमारे DIC के पोस्ट डॉक्टरल और डॉक्टरल फेलोज। आज बुद्धिज्म को लेकर एक व्याख्यान, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो हमने किया है, उसमें कुछ विषय की प्रस्तावना के नाते से मेरे जिम्मे एक काम लगा है। सर्वप्रथम ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संस्थान में बुद्धिज्म के ऊपर चर्चा के लिए, उनके विषयों पर बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। वास्तव में थोड़ा यदि हम
विषय की चर्चा करें तो हमारे पास विशेषज्ञ हैं ही इस विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन बुद्ध का अर्थ आत्मज्ञान और शांति, सद्भाव और न्यायपूर्ण समाज के लिए जो निर्माण करने की एक भावना की आवश्यकता रहती है, ये उसका अर्थ है। इसलिए उनका जन्म और ज्ञान और महापरिनिर्वाण, ये सब प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने, उनका दर्शन ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने है। बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया भर के लोगों ने अपनाया है और उनके जीवन और कर्मों में निहित शक्तिशाली संदेशों के कारण से ही उन्हें भगवान के रूप में भी अनेक स्थानों पर जाना जाता है। इसलिए उनके संदेश वर्तमान संदर्भ में और भी अधिक प्रासंगिक हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार की वैश्विक महामारी और अन्य समय की जटिलताओं के कारण से आधुनिक जगत एक अनिश्चितताओं की ओर बढ़ता जा रहा है, वास्तव में कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि शायद मानवता का अस्तित्व भी एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, अतिवाद है, उग्रवाद है, एलियनेशन है। ये सब स्वभाव रूप से ही मानवता के खतरे में एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए जो प्राचीन काल में मानव जाति ने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने की क्षमता का निर्माण किया था और एक संतुलन पैदा कर लालच भरे रवैये को छोड़कर जीवन जीने की एक दिशा प्रदान की थी, ऐसे वातावरण और बाह्य जगत में और आंतरिक जगत में रहने के लिए बुद्ध का मार्ग जो है वो सर्वोत्तम है। इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए तो हमारे ग्रंथों में, वेदों में अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए और प्रकृति और मानव प्रकृति में उचित सामंजस्य बिठाने के लिए वेदों में इन दोनों तत्वों का वर्णन उपलब्ध है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं, ऐसे अनेक प्रकार से श्लोकों का हम अध्ययन कर सकते हैं। ऋग्वेद पढ़ें तो उसमें तो वायु के गुण बताते हुए कहा गया है कि वाता वातु भेजशम मोयोभू ना हदे, यानी शुद्ध ताजा वायु अमूल्य औषधि है जो हमारे हृदय के लिए दवा के समान उपयोगी है, आनंददायक है। उसको प्राप्त करना हमारा कार्य है। तो बुद्ध ने इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण और जागृति के तरीकों को, इन अनिश्चितताओं को दूर करने की विधि को सिखाने का भी एक काम किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बुद्ध का स्मरण और भी आवश्यक है कि इस अशांत मानवता के मानसिक परिवर्तन करने का जो मार्ग बुद्ध ने दिखाया है वो आज के समय में अधिक प्रासंगिक है और बुद्ध की शिक्षा में व्यक्ति को स्वयं का मार्गदर्शक बनाने की बात करती है। हमारे यहाँ एक कविता में हम बोलते हैं, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, यानी स्वयं को जागना। अप दीपो भव वाली बात जो है, यानी स्वयं हमको मन की शक्ति देना, स्वयं को संगठित करना, स्वयं को एक दृष्टि लेना। तो बाहरी दुनिया के प्रति ये जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है, इसको बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बुद्ध की शिक्षाएं निभा सकती हैं। इसलिए भारत में और भारतीय लोकतंत्र पर भी बुद्ध के विचारों का और प्रतीकों का बहुत गहरा प्रभाव है। संविधान की प्रस्तावना यदि हम पढ़ें तो उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जिन सिद्धांतों की बात मूल रूप में संविधान के शिल्पी यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कही, वो मूल रूप से बौद्ध की शिक्षाओं से ही जुड़ी हुई हैं। ऐसा उन्होंने अपने एक आर्टिकल में भी एक स्पष्ट रूप में, व्यापक रूप से लिखा है। इसलिए जो बाबा साहेब ने भी कई अवसरों पर ये जो मूल सिद्धांतों की चर्चा की है और मिथकों का खंडन किया है, तो बुद्ध ने प्राचीन भारतीय भिक्षाओं पर उसकी उत्पत्ति पर भी जोर दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो एक नई वैश्विक व्यवस्था में महामारी के कारण से विश्व की समस्याओं में जूझ रहे हैं,
बुद्ध का जीवन जो है, बुद्ध का दर्शन जो है, वो धर्मानुकूल व्यवहार जो है, ज्ञान, करुणा, सद्भाव, तृष्णा आदि जो है, उस सब से निकलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और बुद्ध द्वारा दिखाए गए जो मध्यम मार्ग हैं, अतिवाद का विरोध है, सत्य की प्राप्ति करना है और सत्य संघर्ष से बचने विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल मिलाप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से सर्वसम्मति प्राप्त करनी है। ऐसे अष्टांगिक मार्ग जो है वो ना केवल दुनिया भर में अपितु आध्यात्मिक परिदृश्य को भी बदल कर रखने में सक्षम है। और थोड़ा सा इस विषय में यदि हम भारत का अध्ययन करें तो मित्रों, बोध गया, सारनाथ, नालंदा, राजगीर, कुशीनगर, कपिलवस्तु, वैशाली, श्रावस्त्रवी, कौशाम्बी, ये इस प्रकार के आध्यात्मिक महत्व के केंद्र हैं जो वास्तव में हमारी साझा विरासत और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए सामरिक दृष्टि से भी बौद्ध दर्शन का और बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्व भारत के लिए है। जिस प्रकार शांतिपूर्ण और करुणा जैसे जो मूल्य दिए हैं बौद्ध धर्म ने, आज पूरा विश्व भारत को भी एक ऐसी आशा भरी दृष्टि से देखता है। हम सबको स्मरण होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 की संयुक्त राष्ट्र सभा के भाषण में क्या कहा था कि भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। यानी हम शांति प्रतीक देश हैं। इसलिए ये जो वैश्विक परिस्थितियां बन चुकी हैं, उस सारी वैश्विक परिस्थितियों में भी बौद्ध धर्म जो है वो एक प्रासंगिक है हमारे लिए, जो वसुधैव कुटुंबकम की एक चर्चा जो है हमारे सामने भी रखता है। तो इसलिए मुझे ऐसा स्मरण है, जब मैं इस सेंटर में ज्वाइन किया तो हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप जाइए और एक वशिष्ठ व्यक्ति से मिलकर आइए। सो देयर इज अ मैन, प्रोफेसर लोकेश चंद्रा, 91 साल की आयु में वो जीते जागते एक साइक्लोपीडिया है बुद्धिज्म के ऊपर। और हम उनसे जब मिले तो उन्होंने हमारे को एक बात कही कि आपका जो डीएआईसी है, ये डीएआईसी में जो भारत में बुद्धिज्म के ऊपर चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है, रिसर्च कर रही है, उसके काम को एक कॉम्प्लीमेंट करने का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। तो ऐसे साधन के लिए मित्रों हम सब लोग इस प्रकार के काम को करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे कुशल नेतृत्व में भी हमको इस प्रकार से अवसर बार बार दिए जाते हैं कि हम बुद्धिज्म के ऊपर चर्चा करें। सौभाग्य से आज हमारे पास दो बड़े ही विद्वान जो हैं वो इस सत्र में भी उपलब्ध हैं और एक का मार्गदर्शन और एक की चर्चा हमको अभी आने वाले 1 घंटे में सुनने को मिलेगी और दूसरे का जो है प्रोफेसर लाल जी का भी व्याख्यान हमको आज वैलिडिक्टरी सेशन में सुनने को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रासंगिकता के रूप में और एक प्रस्तावना के रूप में अपनी बात रखते हुए प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी से अब निवेदन करता हूं कि वो की नोट एड्रेस जो है उसको दिव्यैश्चन्दन चूर्णमिश्र निकरैर्मन्दानिलोभाषितैः वीणा वेणुमृदङ्गतुन्दुभिरवैः गन्धर्वकीर्तीश्वरैः यो जातः क्षितिपालकः प्रचलयन् कृत्स्नं त्रिलोकालयम् सर्वज्ञाय निरुद्ध सर्वज्ञाय निरुद्ध सर्वगतये बुद्धाय तस्मै नमः बुद्धाय तस्मै नमः। धराबद्ध पद्मासनस्थांघ्रियस्तिर नियम्यानिलं यस्तनाशाग्रदृष्टिः या आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्ती स बुद्धः प्रबुद्धोस्तु मे चित्तवर्ती स बुद्धः प्रबुद्धोस्तु मे चित्तवर्ती सच्छायः स्थिर धर्म मूलवलयः
छाया स्थिर धर्म मूल वलया पुण्यान बाल स्थित अधीर विद्या करुणां शाही बिलसत विस्तीर्ण शाखान्वितः संतोषोज्वल पल्लव यशः पुष्पः सदा सत्फलः सर्वाशा परिपूरको विजयते सर्वाशा परिपूरको विजयते श्री बुद्ध कल्प ध्रुवः श्री बुद्ध कल्प ध्रुवः। अत्यंत सौभाग्य दिवस है यह आज का, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक दिवसीय नेशनल सेमिनार ऑन बुद्धिज्म के संयोजक जिनका संदेश मिला, ईमेल मिला और जिन्होंने बात साक्षात फोन पर वार्ता भी की, इस ईमेल इस सेमिनार के संयोजक, एक दिवसीय सेमिनार के संयोजक डॉक्टर वरुण गुलाटी जी, एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य श्रीमती उपमा श्रीवास्तव जी, मेंबर सेक्रेटरी, और हमारे विकास त्रिवेदी जी, जिनसे को बहुत अच्छे ढंग से वार्ता हुई, बड़ा मधुर संवाद हुआ, अच्छा लगा मुझे। हमारे डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर सुनील कुमार जी, परितोष जी, और हमारे सेमिनार समिति के डॉक्टर ज्योति लक्ष्मी कश्यप जी, डॉक्टर रमेश बाबू परा जी, डॉक्टर सूर्य संतिल जी, मैं इन सभी को सेमिनार समिति के संयोजक, संचालक, व्यवस्थापक और समिति के सभी माननीय सदस्यों को सादर अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये जो सेमिनार आयोजित हो रहा है, मैं जहां तक समझता हूं, अगर निष्पक्ष रूप से बौद्ध धर्म मीमांसा और बौद्ध दर्शन, थोड़ा धर्म मीमांसा अलग है, धर्म मीमांसा प्राचीन है, और जो दर्शन शास्त्रीय मीमांसा है वो आप समझिए ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद करीब 12वीं 13वीं सदी तक जो भारतीय आचार्यों का जमघट बुद्धिज्म पर या बुद्धिज्म के समक्ष आया, उन्होंने इसे शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने का जो वांग्मय है वो तो बुद्ध वचन के रूप में माना जाता है, जिसको हमारे यहाँ लोग कहते हैं कंजोर एंड तंजोर, ये तिब्बती लोग कहते हैं। इन्होंने अच्छा विभाजन किया, दो भागों में आप विभाजित कर दीजिए बुद्धिज्म को साथ, एक कंजोर एक तंजोर। कंजोर का मतलब क्या है? बुद्ध वचन, सूत्र वचन, जो डायरेक्ट सीधे जो हमारे भगवान बुद्ध ने विभिन्न देशनाओं के दौरान। सर आपसे निवेदन है, थोड़ा माइक पास रखें, आवाज कट रही है, तो अच्छा, हम माइक थोड़ा सा फोन का पास रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है, जी, मैं इसलिए लगाया हूँ कि इसको मैं चार्ज में भी लगाया हूँ कि कहीं ये भरा हुआ पूरा है, कहीं वो ना हो, तो दोनों व्यवस्थाएं रहें, मैंने समय अधिक ना हो जाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको निकालता हूँ। हाँ, अब ठीक। तो बुद्धिज्म को एक सूत्र वचन के रूप में आप देखें, और सूत्र वचन का ही पल्लवन, विशदीकरण, संवर्धन हमारे नागार्जुन, हमारे वसुबंधु, शांतरक्षित, शांतिदेव, दिंगनाथ, धर्मकीर्ति, कमलशील, आर्यदेव, चंद्रगोमी,
आदि अनेक विद्वानों ने इसे शास्त्रीय स्वरूप, कह दूं सीधी भाषा में व्यवहारिक सौत्रांतिक योगाचार माध्यमिक इनके रूप में प्रदान किया। और जो बौद्ध महायान मिला हमको, भगवान बुद्ध के वचन तो दोनों से संबद्ध थे। वहां क्या हीनयान के भी कुछ वचन मिलते थे विभाषा नाम के ग्रंथ में, और कुछ महायान के भी वचन मिलते थे। तो उन्हीं वचनों को निकाल करके हमारे परवर्ती बौद्ध दार्शनिकों ने, प्रख्यात प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिकों ने उसमें 4 धाराएं बना दी, जिससे वो वैभाषिक सौत्रांतिक योगाचार माध्यमिक संस्कृत महायान, जिसको कहते हैं आप, संस्कृत महायान अगर नहीं होता तो आज बुद्धिज्म इतना पुष्पित पल्लवित नहीं होता। तो संस्कृत जो महायान है वो पूरा संस्कृत भाषा में निबद्ध है। और आप देखें, केवल बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, आप केवल बुद्धिज्म तक सीमित मत समझिएगा इसको। बुद्धिज्म के 4 व्याकरण है साहब, चांद्र व्याकरण, आपका सारस्वत व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, कास्टिक व्याकरण इत्यादि व्याकरण है। और इन्होंने काव्यों पर भी काम किया। हमारे आयुर्वेद में भी जो है क्या है, बुद्धिज्म का प्रवेश है। आयुर्वेद के ग्रंथों का भी जो है अनुवाद हुआ है, नीति साहित्य का भी अनुवाद हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे वैदिक धारा ने, जैसे वैदिक वाङ्मय ने और पश्चातवर्ती लौकिक संस्कृत वाङ्मय ने जैसी छाप छोड़ी, और जैसा समग्र भारतीय संस्कृति, या मैं कह दूं विश्व संस्कृति, भारतीय संस्कृति वहां एक अंग के रूप में है, तो आप समग्र विश्व संस्कृति पर को प्रभावित किया। और संपूर्ण इतिहास, भूगोल, राजशास्त्र, सामाजिक शास्त्र इत्यादि विभिन्न आधुनिक और प्राच्य दोनों धाराओं को का समन्वय हमारे संस्कृत वाङ्मय ने किया। उसी प्रकार से बुद्धिज्म ने भी जो है तत्त शास्त्रों की दृष्टि से और इस अपने बौद्ध वाङ्मय का विस्तार किया। हुआ क्या कि 12वीं 13वीं करीब 8वीं 9वीं शताब्दी में थोड़ा एक भूचाल जैसा आ गया, और शंकराचार्य जी ने जो ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में आप देखेंगे तो वैभाषिक सौत्रांतिक योगाचार माध्यमिकों के 4 सूत्र डाले, उन 4 का खंडन किया। और धर्म कीर्ति और कुमारिल भट्ट जो मीमांसक हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इनके साथ जो द्वंद्व चला, जो खंडन मंडन की प्रक्रिया चली, और भगवान बुद्ध ने जो नारियों का प्रवेश बौद्ध धर्म के अंदर दे दिया, भिक्षु आनंद और महाप्रजापति गौतम, इन दोनों के निवेदन पर जो है, आग्रह पर आनंद ने पुष्टि की। आनंद ने महाप्रजापति गौतमी के संदेश को बुद्ध के पास पहुंचाया, तो उन्होंने उसे स्वीकार किया। और फिर कुछ सनातन वैदिक धारा को, जो भी कहिए, मीमांसकों के ग्रंथ आप पढ़ेंगे जब मीमांसा दर्शन के ग्रंथ, तो वहां बड़ी विचित्र बातें आई हैं। कहने में भी यहाँ संकोच का अनुभव होता है। कह दूं अपवाणी का प्रयोग हुआ एक दूसरे के लिए साहब। आपके यहाँ बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत का आख्यान किया है। यहाँ पंचशील सिद्धांत का मठों में उल्लंघन को देखा जा रहा है सरेआम। ये क्या धर्म है? आप प्राणातिपात वृत्ति, अदत्तादान वृत्ति, काम मिथ्याचार वृत्ति, मृषावाद वृत्ति, सुरामेरे, मध्य प्रमाद वृत्ति की आप बात करते हैं, और वहां तो साहब कुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो 12वीं 13वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के ऊपर बड़ा संकट आ गया, और भारतीय विचारधारा ने जो है थोड़ा उसे कोने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कह दूं कि मध्य भारत से बौद्ध धर्म का 12वीं 13वीं शताब्दी से कुछ बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, और जाकर के अरुणाचल, सिक्किम, लेह लद्दाख, हिमाचल आदि सीमांत प्रदेशों में और फिर विदेशों में जाकर के जो है बौद्ध धर्म पहुंच गया। बहुत हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारी जो वर्तमान मोदी सरकार, भाजपा सरकार है, मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं। हमें तो जिस सरकार का विद्या के क्षेत्र में, शास्त्र के क्षेत्र में योगदान मिलेगा, हम निश्चित रूप से खुलेआम उसकी प्रशंसा करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति समूची जो है, समूची अनुप्राणित है हमारे वैदिक वाङ्मय से, लौकिक वाङ्मय से और बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म
और वैदिक धारा, अगर इन दोनों का पारस्परिक संबंध है, इन दोनों के सिद्धांतों का एक दूसरे पर प्रभाव है, इसलिए मैं तो साहब बुद्धिज्म को भारतीय दर्शन के अंतर्गत मानता हूं। जहां हमारे कुछ बौद्ध दर्शन के इतिहास जो आजकल मार्केट में आ गए हैं छप करके, आपने देखे होंगे शायद, तो षड दर्शन को अलग कर दिया साहब, नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन आदि को बैठा दिया, जबकि वहां नास्तिक जैसी कोई बात नहीं है। वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते, तो ये उनकी विचारधारा है, वहां तर्क है, युक्तियां हैं। हम स्वतंत्र हैं इस विषय में, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। इन्हीं बस थोड़ी सी इसी दृष्टि से हमारी वैदिक धारा ने जो है कुछ बौद्ध धारा की उपेक्षा कर, फलतः वो ग्रंथ आप देखें कितना एक तरफ क्लिष्ट भी है। बौद्ध दर्शन सबकी समझ में आने वाला नहीं है। आप देखिए, आप उठा के दिंगनाक का प्रमाण समुच्चय है, आज पूरा नहीं मिल रहा है, संस्कृत में लुप्त हो गया है, और उसका कोई रेस्टोरेशन जिन जो तिब्बती भाषा में उपलब्ध है उससे अभी तक रेस्टोरेशन नहीं हो पाया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साफ 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं 15वीं शताब्दी तक जो बौद्ध वाङ्मय हमारा भारतीय बौद्ध दर्शन था, और वो तिब्बती भाषा में तिब्बत में पहुंचा राजा सोंगचन गोम्पो के काल में, आप उठा के देख लीजिए। और उन्होंने नालंदा में आकर के यहाँ थॉनमी संभोट को भेजा, उन्होंने यहाँ अध्ययन किया, और तिब्बत बौद्ध महायान का जो है पूरा संरक्षण उस समय तिब्बत के विद्वानों ने दिया। और मैं आपको सूचना के तौर पर बतला दूं, आप बुद्धिज्म के हैं, कि जो ग्रंथ संस्कृत में विद्यमान थे बौद्ध दर्शन के, मूलतः लुप्त हो गए थे। उन ग्रंथों का हमारे सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान यूनिवर्सिटी ने करीब 50 ग्रंथों का रेस्टोरेशन, पुनरुद्धार, उपलब्ध तिब्बती अनुवाद के आधार पर संस्कृत रूपांतरण, संस्कृतावतरण, उस ग्रंथ का आद्योपांत, गद्य का गद्य में, पद्य का पद्य में जो है, जो जहां गद्य है वहां गद्य में। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि तिब्बती भाषा का स्ट्रक्चर, उसका निर्माण एकदम संस्कृत शब्दों से मिलता है। जब वो लोग बोलते हैं मुझसे, मैं कहा भैया जरा इसको बताइए, तो हम लोग उसका संस्कृत बनवाते हैं। तो फिर सब ग्रंथों में देखते हैं कि इनके और ग्रंथ देखिए, उसकी भाषा का स्तर कैसा है, भाषा ठीक है, हम बना पाए कि नहीं, हम उस स्तर का पद्य दे पाए कि नहीं, हम गद्यावतरण कर पाए कि नहीं, हम समर्थ हुए कि नहीं, और जरा आचार्य के प्राचीन उपलब्ध ग्रंथों से भाषा को मिला लिया जाए। तो हम लोग 3-3, 4-4 घंटे बैठ करके उनके साथ वो पोथी लाते हैं अनुवाद के आधार पर, क्योंकि संस्कृत में उपलब्ध नहीं है, काल कबलित हो गई मुस्लिम काल में, और ये अंग्रेजों के शासन काल में भारत में जो है बहुत साहित्य डुबो दिया गया, बोरों में भरकर फेंक दिया गया। बौद्ध धर्म को उखाड़ने का खूब प्रयास किया गया, और सनातन धर्म को भी उखाड़ने का प्रयास किया गया, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। तो उन्होंने जो है संस्कृत विद्वानों के साथ बैठ करके करीब 50 से अधिक, जिसमें देखिए आप कमल, उदाहरण दूं आपको, कमलशील का भावना देखिए वहां से छपा, नागार्जुन का धर्म संग्रह आप उठा के देखिए, आपको वहां मिलेगा, विमल प्रभा टीका का भी हुआ है, कुछ आंशिक हुआ है। ऐसे जो है 50 ग्रंथों का जो है वहां से पुनरुद्धार संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, तिब्बती 4 भाषाओं में कुछ ग्रंथों का हुआ है, और कुछ का केवल हिंदी तो सभी का, हिंदी रूपा अनुवाद तो सभी का हुआ है। तो एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मैं सूचना के रूप में आपको दे रहा था, बता रहा था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य खास करके महायान बौद्ध दर्शन पर यह कार्य हुआ है। तो मैंने कुछ इससे संबंधित सूचनाएं दी। अब मैं कुछ अपना मंतव्य आपके समक्ष रखूं, समय अधिक हो जाएगा तो आप निसंकोच मुझे संकेत कर सकते हैं। मैं जब बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं तो बौद्ध धर्म में तो नंबर 1 पर साहब अनुशासन है, और हमारे पतंजलि का सूत्र है महाभाष्य व्याकरण में, अथ शब्दानुशासन। अरे जिसने शब्दों का अनुशासन नहीं सीखा, जिसने शब्द की मर्यादा का पालन नहीं किया, उसका अतिक्रमण किया, उसका अनुपयुक्त प्रयोग किया, उसका गलत उपयोग किया,
वह क्या वाङ्मय को दे सकेगा, वो क्या समाज को दे सकेगा, बताइए। तो विश्व समाज में अभिव्याप्त समस्त धर्म एवं संप्रदाय यद्यपि विश्व समाज के श्रेय, प्रेय, सौहार्द एवं शांति के लिए ही कटिबद्ध देखे जाते हैं, फिर भी उन धर्मों के अंदर आप समझें कुछ ऐसी रूढ़ियां, आज कट्टर नियम हैं, कुछ परंपरागत कर्मकांड है। आप गांव में जाके देखिए, आपको कितने प्रकार के विचित्र टाइप के जो है क्या है कि परंपराएं मिलेंगी, आनुवंशिक परंपराएं चली जा रही, जहां जिनका ना किताबों में, ना पुस्तकों में, ना पुराणों में कहीं उल्लेख नहीं। साहब वो आनुवंशिक क्रम से जो है परंपराएं चली जा रही है, वो कट्टर है, उसको छोड़ नहीं सकते। यही भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है, विविधता है और विशेषता है महोदय हमारे। अब आप देखिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम धर्म के लोग बकरीद मनाते हैं, वहां बकरे की हिंसा बलि दी जाती है, ट्रकों में, हजारों ट्रकों में बकरे लाए जाते हैं साहब। तो अब आप इसको दूसरे ढंग से देखिए, एक तरफ हम बुद्ध के अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं, आप बताएं प्राणातिपात विरति, प्राण अतिपात विरति, अर्थात प्राण अतिपात का अर्थ गिराना, प्राण पतन से विराम लेना, अर्थात प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी भी जंतु की जो है क्या हिंसा ना करना, ये बौद्ध धर्म का बुद्ध वचन है। ये प्राणातिपात विरति, अदत्ता दान वृत्ति है, बिना दिए हुए किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना, अर्थात उससे रुकना। उन्होंने विरति शब्द लगाया है वहां। अदत्ता दान वृत्ति का अर्थ है अदत्ता दानात वृत्ति, अर्थात पंचमी विभक्ति वहां संस्कृत व्याकरण। अदत्ता, अदत्त, अदत्त ना दिए गए दान से, द्रव्य से, विरति अपने आप को रोकना, अर्थात उसको जो है वो करना। तो ये हमारे और हमारा धर्म भी वहीं पर बात करता है। हाँ, याज्ञिक पशु हिंसा का जरूर विरोध किया बुद्ध भगवान ने, उसका तो मैं जहां तक समझता हूँ असर पड़ा है। मैं भी याज्ञिक संस्कृति से संबद्ध हूँ और शिक्षा क्षेत्र से भी संबद्ध हूँ। और अगर आप ये भी एक बहुत विशाल संस्कृति है, याज्ञिक संस्कृति, देव संस्कृति है वो। उसके बिना तो भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकती है, शक्ति संपन्न नहीं हो सकती है, सुदृढ़ नहीं हो सकती है। तो वो है। तो वहां जो पशु बलि दी जाती थी, और कहीं कहीं तो मैंने अभी भी देखा है गांव में कन्या बलि। अब क्या बात करते हैं, कुछ पाने के लिए कन्या बलि का भी कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है और वो चल रही है। तो बुद्ध और बौद्ध धर्म ने यज्ञों में पशु बलि का विरोध नहीं किया होता तो अब मैं जहां तक समझता हूँ अद्यतन पर्यंत बलि प्रथा हमारी बंद नहीं होती। तो ये हमें बुद्धिज्म ने जो है दिया हुआ है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। भारतीय सनातन हिंदू धर्म की आचार संहिता भी बड़ी बेजोड़ है, जहां विश्व कल्याण की कामना की गई है। देखिए आप श्रीमद् भागवत में राजा रंतिदेव कहते हैं, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम अपुनर्भवम आर्तिम प्रपद्ये खिल देह वाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुखा भवन्ति अदुखा। लीजिए साहब, अब आप से पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथम ब्रह्मणाकृतम, ये कहा गया है आप सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पुराणों की रचना की है। तो बुद्धिज्म तो बाद में आया है। अगर हम कहें तो बुद्धिज्म का तो हिसाब किताब है कि 500, 550, अधिकतम 600 ले लीजिए, कोई 650 तक भी ले जाए ईसा पूर्व, तो बुद्धिज्म का है। लेकिन हमारे पुराणों में भी अदुख की चर्चा की गई है। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। साहब मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं सुख संपत्ति नहीं चाहता, मैं वैभव नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जो भाई बंधु, हमारे देश के जो लोग अत्यंत दुख से पीड़ित हैं, मैं उन लोगों के दुख को दूर करने के लिए बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं। मैं अकेले मोक्ष लेकर के क्या करूँगा? जब हमारे भाई बंधु, हमारे कुटुंबी, हमारे देश के लोग जब दुख से पीड़ित हैं, वो संकट की घड़ी में हैं, संकट झेल रहे हैं, तो आप अकेले अपना हित उत्पादन नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म इसको स्वीकार नहीं करता है, खास करके बौद्ध महायान समस्त प्राणियों के दुख के दूर की कामना करता है। और कैसे करता है, मैं आपसे पूछूं, आप कैसे
किसी के दुख को दूर करने की। जब आपको दुख को दूर करने की इच्छा होगी, वो अवसर आएगा, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, आपके अंदर जाकर के इस प्रकार की कोई हलचल होगी, तब ना होगा। क्या हम बुद्ध वचन पढ़ लें, भागवत के वचन पढ़ लें, शास्त्रीय वचन पढ़ लें और उसको साहब याद करके, समझ करके, अर्थ भी जान करके हम उसको कर दें, लेकिन जब तक हम गले के नीचे नहीं उतारेंगे, व्यवहार में उसका पालन नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में उसको चरितार्थ नहीं करेंगे, उसको सुसंगत नहीं करेंगे, उसका समन्वय नहीं करेंगे, तो मैं जहां तक समझता हूं कि तो हमारे शांतिदेव 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं, शांतिदेव का नाम सुना होगा आपने, बौद्ध कवि का। वो कहते हैं, न शिक्षा रक्षितुम शक्या, न शिक्षा रक्षितुम शक्या, चलम चित्त मरक्षता। क्या मतलब हुआ? कह रहा है इस वर्तमान शिक्षा की रक्षा नहीं की जा सकती है। क्यों? चंचल चित्त की रक्षा करते, चंचल चित्त की रक्षा ना करते थे, अरक्षता लिखा है। मतलब जब तक चित्त हमारा नियंत्रित नहीं होगा, तब तक हम उन सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते। चित्त संरक्षण का से तात्पर्य है चित्त संशोधन, चित्त संसति विशोधन, चित्त संसति चित्त संतति पावनता, पवित्रीकरण, अर्थात चित्त के मल, क्लेश, राग, द्वेष, मोह, अविद्या को जब तक हम अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक आप किसी भी धर्म की शिक्षा का बखान कर दीजिए, कितनी किताबें पढ़ जाइए, कवि बन जाइए, लेखक बन जाइए, साहित्यकार बन जाइए, पुरस्कार भी लूट लीजिए, साहब कोई असर नहीं। आपसे आपने जब तक अपनी चित्त संतति का संशोधन नहीं किया, तब से जो है समाज के हित की आशा आपसे करना संभव। तो बौद्ध धर्म बड़ा विचित्र धर्म है मेरा जहां तक, अर्थात परीक्षित धर्म है। सोने की सोने को जैसे कसौटी पर एक सुनार, एक लौहकार लोहे को गर्म आग में गर्म करके जैसे जो है क्या करते हैं, पीटता है, छेदता है, उसको लोहा का वो मारता है, फिर उसकी असलियत को लेकर के फिर उसको ग्रहण करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरे वचनों की परीक्षा आप सुनार की तरह करो। तापा छेदाच निकषा, सुनिए आप, ये शांत रक्षित हमारे बौद्ध दार्शनिक हैं, उनका ग्रंथ है, बहुत विशाल काय ग्रंथ है, तत्व संग्रह। अरे साहब, हजारों श्लोकों में उस पर कमलशील आचार्य, उन्हीं के शिष्य, उनकी एक टीका है, उस टीका का नाम नोट कर लें, पंजिका टीका है। वो संस्कृत टीका है, उसका भी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो गया है। हाँ, संस्कृत को तो बुद्धिज्म ने विदेशों में पहुंचा दिया, वहां हिंदी और अंग्रेजी की तो कहीं कोई दूर दूर तक बातें ही नहीं है। समझिए, संस्कृत को पहुंचा दिया बुद्धिज्म ने, संस्कृत को पहुंचा दिया, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि बुद्धिज्म संस्कृत में आया। और इन हमारे भारतीय आचार्यों का योगदान, जिनका मैं नाम पहले ले चुका हूं कुछ समय पहले, तो इन आचार्यों ने महा विशाल विशाल शास्त्रों का जो है क्या है योगदान दिया। तो इससे जो है ये इन शास्त्रों की जो है जाकर के क्या है रक्षा हुई। तो कमलशील की पंजिका टीका में एक श्लोक उद्धृत है। क्या श्लोक? तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पंडितैः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मद्वचो न तु गौरव। क्या कह रहे हैं साहब? जैसे सुनार लोहे को या सोने को तापात, तपाने से, छेदात, काटने से, उसको आप काटेंगे ना, उसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, अंदर भी देखेंगे कि इसमें असलियत है कि नहीं, कहीं अंदर कुछ और तो नहीं घुसा हुआ है। निकषात सुवर्ण में वो पंडित है। और पंडित लोग कैसे? पंडित लोगों को जैसे वो सुनार काटता है, छेदता है, फिर उसकी वास्तविकता को जान करके उस द्रव्य वस्तु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से पंडितों को भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरे वचनों की भी सुनार के सोने की तरह परीक्षा करनी चाहिए, तब उसे आप ग्रहण करो। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वचन तो आप स्वीकार करें, अच्छा नहीं लगता है आप उसका मत बचो न तु गौरव। कह रहे हैं बुद्ध का नाम फैला हुआ है, बुद्ध महापुरुष हैं, बुद्ध का गौरव गुणगान आज
विश्व स्तर पर हो रहा है साहब। किसी एक देश में बुद्ध विराजमान नहीं है। बुद्ध जो है संपूर्ण विश्व में है। कौन सा ऐसा किस देश का कोना है जहां बुद्धिज्म ना पहुंचा? वो उसकी खासियत है, उसकी विशाल एक सत्तों के हित की यात्रा है। अनाथ, पीड़ित, दरिद्र, दीनहीन लोगों का साथी है साहब बौद्ध धर्म, और वो उनके हित की कामना करता है। तो इसलिए मेरे नाम के गौरव से कि बुद्ध का ये वचन है साहब, बुद्ध ने बोला है, बुद्ध धर्म ईश्वराज्ञा नहीं है, ये भी मेरा कहना है। ना भूतो ना भविष्यति, संस्कृत में कहा जाता है ना ऐसा कभी हुआ है ना साहब ना ऐसा कभी होगा। बुद्धिज्म इसकी घोषणा नहीं करता, बुद्धिज्म इस पर नहीं चलता है। रूढ़िवाद का कट्टर विरोधी बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म ईश्वर का साक्षात वचन नहीं है। बुद्धिज्म किसी अदृश्य शक्ति का, किसी अवतारी अदृश्य शक्ति का जो है क्या है, बुद्धिज्म परिणाम नहीं है। आप समझे, एक महानायक, एक पुरुष और राजा शुद्धोधन का बेटा कपिलवस्तु का, जो लुम्बिनी वन में पैदा हुआ माया देवी के गर्भ से। आप लोग सब जानते हैं, वैसे मुझे ये कथा बताने की आवश्यकता नहीं है, जो सामान्य बातें हैं। तो वो उत्पन्न हुआ और उसने फिर ज्ञान प्राप्त किया, तप किया, अपनी सुंदर पत्नी और पुत्र को उसने त्याग किया और संसार के दीनहीन दुखी प्राणियों के हित के लिए वो व्यग्र हो उठा। उसे राजमहल का सुख वैभव भी अच्छा नहीं लगा। अब आप बताइए जरा, ये पूरी अवधारणा हम लोग जानते हैं, हम लोग बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, संतुष्टि का अनुभव भी करते हैं, लेकिन किसी से पूछें अगर उस संतुष्टि की क्या परिभाषा है महोदय, आपने किस रूप में इसको लिया, आपने कहां तक चरितार्थ किया कि खाली उसका अर्थ जान लिया। अरे करुणा का उद्रेक हुआ, करुणा नहीं तो बुद्धिज्म नहीं। मैं बताऊंगा, करुणावान धर्म अगर कोई सुटेबल उपयुक्त धर्म है तो बुद्धिज्म है। करुणा ही उसका शस्त्र है महोदय, करुणा ही उसका शास्त्र है महोदय। करुणा के बल पर वह जो है अपनी अहिंसा की यात्रा पूरी करता है। हिंसा का तो वहां साहब दूर दूर तक कोई स्थान ही नहीं। तो वर्तमान समाज को मैं जहां तक समझता हूं, इस दृष्टि से भगवान बुद्ध और उनका लोक हितकारी धर्म में आज अत्यंत जो है प्रासंगिक है। यह धर्म तो विषमकारी प्रवृत्तियों को उखाड़ने वाला, जातिवाद की कमर तोड़ने वाला, आतंकवाद को कुचलने वाला, समरसता की वर्षा करने वाला, अरे साहब पत्थर को भी फूल बना देने वाला, विश्व समाज को एकता सूत्र में बांधने वाला, अत्यंत उपादेय और हमारे और आपके कंधे को कंधे से मिला देने वाला अगर धर्म है तो मेरी दृष्टि में अन्य धर्म भी हैं, लेकिन बौद्ध धर्म एकदम हमारे व्यवहार में खरा उतरता है। सीधी हमारी प्रवृत्तियों को भगवान बुद्ध क्या है पकड़ते हैं। तो इसलिए मुझे तो अत्यंत उपयुक्त लगता है। इसी धर्म ने आज आप समझिए, इसी धर्म के परिणाम स्वरूप आज यह धर्म भारत में जो पैदा हुआ, वह आज भारत की ही धर्म पताका को, भारत की ही संस्कृति को आज वह विश्व में भी सुप्रतिष्ठित कर रहा है। आखिर उत्पन्न तो हुआ हमारे भारत में, सारनाथ में उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया, 4 आर्य सत्यों का उद्घाटन किया, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग, तत्पथ अष्टांग मार्ग का किया, प्रतीत समुत्पाद जैसे सिद्धांत का, निर्वाण शून्यता जैसे सिद्धांत का जो है दर्शन कराया। तो ये सीधा हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों से, हमारी सामाजिक प्रक्रियाओं से बंधा हुआ, उनसे संबद्ध सुपरीक्षित यह जो है धर्म है। तो हमारी जो आज भी अभी कुछ हम रूढ़िता को उखाड़ने की बात करते हैं, खुद हम रूढ़िवादी जीवन बिताते हैं। आप जब परखेंगे देखेंगे सूक्ष्मता से तो अभी भी हमारी कुछ कट्टरताएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आज समाज में कुछ दूरियां आ गई हैं। कुछ अन्य स्वार्थ संकीर्णता, कुछ क्षुद्र मानसिकता के चलते भी जो है क्या है,
हमें जो बौद्ध धर्म का प्रसाद मिलना चाहिए था, हमें जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था, वो आशीर्वाद हम नहीं ले पाए। इसका भी हमें ऐसे अवसर पर खेद प्रकट करना चाहिए अपनी सीधी भाषा में, बिना किसी संकोच के। और देखिए आप, इसी प्रकार से बुद्ध को मैं जहां तक समझता हूं कि बुद्ध कहीं किसी एक समुदाय या किसी एक इकाई तक आप बुद्ध को सीमित नहीं मान सकते हैं। क्या जो बौद्ध भिक्षु हैं वहीं तक बौद्ध धर्म है? क्या बौद्ध धर्म का जितना उपदेश वो हमारे सामने जो कोई खड़ा है तो हम उसका नाम लेकर के बोल रहे हैं, तो नाम लेकर के बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या केवल उसी के जीवन से संबंधित वो बात है या उसी से संबंधित वो समस्या है? वो उसको एक निदर्शन के रूप में कहिए, उदाहरण के रूप में हम उसको बहाना बनाकर उसके व्यास से हम पूरे समग्र मानव मात्र के लिए हम जो है क्या है उपदेश देते हैं। तो इसी प्रकार हमारे बुद्ध भगवान जो है किसी एक इकाई तक, एक जाति तक, एक वर्ग तक, एक देश तक सीमित नहीं थे। वो तो विश्व जनीन धर्म है, विश्व जनीन बुद्ध है, विश्व जनीन संस्कृति वाहक है। कौन? हमारे भगवान बुद्ध का धर्म। हमारे आज जो जन्म मृत्यु का बंधन है, आप देखिए ये बिल्कुल नैसर्गिक प्रवृत्ति है। भगवान बुद्ध ने जन्म मृत्यु बंधन से भगवान बुद्ध उद्वेलित हुए, आकुलित हुए, व्याकुलित हुए, ये आप लोग जानते हैं, उसे हम पढ़ते भी हैं। लेकिन साहब हम भी जन्म और मृत्यु बंधन के पीछे दौड़ लगाते हैं। देखिए जरा आप शांतिदेव के शब्दों में, दुख में वाभिधावंती दुखनी शरणाशयाः और सुखेक्षयैव सम्मोहात् स्वसुखम घिनन्ति शत्रुवत्। लीजिए साहब, एक तरफ आप दुख से निकलना चाहते हैं और आप जिस सुख के पीछे जा रहे हैं ना, वो सुख नहीं है, वो दुख है। तो दुखम एवं अनुधावंती, शांति देव बौद्ध कवि कहते हैं, दुख की ओर दौड़ लगा रहे हो। क्यों? दुख निर्वासन इच्छा, दुख से निकलने की इच्छा से आप दुख के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, सुख के पीछे नहीं। क्यों? स्वसुखम घ्रंति सत्य, आप जो है खुद अपने परम सुख, आत्यंतिक सुख, निर्वाण सुख, शून्यता सुख कि खुद आप विरोधी हैं और वो विरोधी तत्व आपके अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए वो कहता है सुखेक्षयैव वो सम्मोहा। ये जो लौकिक सुख है ना, ये पारमार्थिक सुख नहीं है, ये परम सत्य सुख नहीं है, ये सांसारिक भौतिक वासनात्मक सुख है महोदय। ये जो हमें आज संसाधन मिल रहे हैं, विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। तो ये पूरा जो अविद्या का सुख है, इसे आप वास्तविक सुख मान रहे हो। आप अनित्यता से चिपके हुए हो, अनित्यता को आप गले लगा रहे हो और आप जो एक अनिश्चित अल्पकालिक क्षणिक जो जीवन मिला हुआ है उसको आप दीर्घायु, लगता है अमर जीवन जैसा मान बैठे हैं कि साहब मेरी संपत्ति, मेरे द्वारा अर्जित धन, मेरे द्वारा अर्जित वैभव, ये सब मेरे साथ रहेगा, मैं इसका अनंत काल तक क्या है उपभोग करूंगा। ऐसा आज का अज्ञानी व्यक्ति जो है मान करके जीवन जी रहा है। अगर हमें अविद्या से, राग से, द्वेष से, दुश्मनी से, कदाचार से, भ्रष्टाचार से, जातिवाद से, स्वार्थवाद से ऊपर उठना है, अपने आप को ऊपर उठाना है, तो आपको अपने जीवन बौद्ध धर्म को का समन्वय करना पड़ेगा। समन्वय करना पड़ेगा का मतलब अपनी जीवनचर्या में उसे घोलना पड़ेगा, उसे उतारना पड़ेगा, वास्तविक रूप से बौद्ध धर्म को अपने जीवन में जीना पड़ेगा। तभी आप जो है अविद्या, राग, द्वेष, क्लेश से मुक्त हो पाएंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए अमर पद को जो है क्या है प्राप्त करेंगे। तो आज यहाँ क्या है देखिए आप, कुछ अज्ञानी तो इस बंधन का आज जानते हैं आप, आह्वान करते हैं और इसे मोहबस वे सत्य समझते हैं। जब तक सांसारिक जाल से मनुष्य समाज दूरी नहीं बनाएगा, उसके प्रति महोदय संतुलित स्वस्थ दृष्टि नहीं अपनाएगा, तब तक वह यहाँ धनार्जन, भूमि विस्तार, स्वकेंद्रित अंध विकास, आपका
आपका विकास आप तक सीमित है महोदय, वो अंध है, अंध विकास है, वो कृत्रिम विकास है महोदय। जब तक आपके पड़ोसी, आपके बगल के, आपके ऑफिस में कार्य करने वाले दूसरे लोग दीनहीन, गरीब, अनाथ यदि पर आपकी नजर पड़ती है तो आपको अपनी क्षमता के अनुरूप जो है उसका हित संसाधन करना चाहिए। यही बौद्ध धर्म का स्वारस्य है। बौद्ध धर्म हित को देखता है। बुद्ध कहता है मेरे मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं है, मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। हिता संसन मात्रेणो हिता संसन मात्रेणो बुद्ध पूजा विशिष्यते। शांति देव ने बोधिचर्या अवतार में कहा है, आप अपने घर में किसी के हित की कामना कर लीजिए, बुद्ध कहते मेरी पूजा हो गई। मेरे पास आने क्यों? बौद्ध धर्म मतलब सांसारिक हित, बौद्ध धर्म मतलब सांसारिक कल्याण, बौद्ध धर्म मतलब करुणा का उपवास, दीन दुखी अनाथ लोगों के प्रति है जो है क्या है मर्माहत होना और उनकी सामर्थ्यवश जो है क्या है सहायता करना। तो ये उसका जो है विकास है। आप देखिए बौद्ध भगवान बुद्ध जो है अपनी पत्नी पुत्र को छोड़ करके वह जंगल तपोवन में क्यों गए? क्या आवश्यकता थी उनको जाने की? वो तो राजपुत्र थे, राज वैभव उनको प्राप्त था जो है। बताइए आप, क्या संपत्ति किसी के पास होगी? कोई क्या आज धन अर्जन करेगा, कितना करेगा जो है, कभी भी वह परिपूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन मानव समाज में व्याप्त दुख को दूर करने की भावना महोदय किसी महापुरुष में ही हो सकती है। जन्म जन्मांतर से अर्जित संचित पुण्य वाले व्यक्ति में ही ऐसी सामाजिक कल्याण की भावना का उदय हो सकता है। अर्थात या तो वो तपस्वी होगा निश्चित रूप से, या वो योगी होगा, या वो साधक। तो जो बौद्ध धर्म की यात्रा है वो मैं जहां तक समझता हूं कि विश्व कल्याण यात्रा के रूप में बौद्ध धर्म की यात्रा को हमें लेना चाहिए और वो हमें उनके जीवन से प्रभावित होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा देखें हमारे जो उथल पुथल हुई है, बिना उथल पुथल की कैसे विवेचना ठीक हो बताइए। आपने जयदेव का गीत गोविंद देखा होगा, जरूर देखा होगा। बड़ा उसमें 9 अवतारों का, भगवान विष्णु के 9 अवतारों का वर्णन किया गया है, आपने देखा होगा। बुद्ध का अवतार कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर है, 9वां अवतार है। 10वां अवतार अभी जो है क्या है प्रतीक्षित है, कल की अवतार, आप जानते हैं। तो हमारे 10 अवतारों में थोड़ी चर्चा करें हम कि बुद्ध का जो अवतार है वो विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। अब विष्णु का 9वां अवतार जो श्रीमद् भागवत में, अग्नि पुराण में और आपके क्षेमेंद्र के दशावतार चरित्र महाकाव्य में जो आया है, एकदम संदर्भों के आधार पर ही बात करूंगा। तो आप सुनिए, बुद्ध को जयदेव ने कहा कि बुद्ध यज्ञ विधि का विरोधी है, वैदिक यज्ञों का विरोधी है, वेदों का विरोधी है, ईश्वर का विरोधी है, आत्मा का विरोधी है। आप थोड़ा सा गौर से देखें, निष्पक्ष आप विचार करें तो कुछ इन विरोधों के चलते हमें जो आत्मजनीन, जो हमारे सामाजिक कल्याण, सामाजिक विकास, सामाजिक अभ्युदय, पारलौकिक अभ्युदय से संबद्ध जो बौद्ध शिक्षा मिलती है महोदय, उसके अध्ययन से, उसके ज्ञान से हमारा बहुत विशाल समाज आज वंचित हो गया है, हो रहा है और पता नहीं कब तक होता भी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? तो जो हमारे कुछ वैदिक मान्यताओं का जो विरोध हुआ और बुद्ध के विचार अलग थे, उससे एक बड़ी भारी खाई आ गई। उन्होंने पूछा आप कहाँ हैं, कहाँ काम करते हैं? अरे उसी बुद्धिज्म इंस्टीट्यूट में, बौद्ध संस्थान में। तो साहब वो कुछ दूसरी भावना अपना लेते हैं, तो दूरी बना लेते हैं। अरे तो उनके साथ ऐसा कहते हैं। तो अब देखिए आप कितना गलत है, कितनी गलत सोच है आपकी जो है। आपको
जहां विरोध जहां विरोध है वो तो शास्त्रीय विरोध है, वैचारिक विरोध है। और वैचारिक विरोध क्या, वैचारिक मतभेद के चलते ही तो शास्त्रों का विकास हुआ है। इतने मतांतर नहीं होते, सरदर्शन नहीं खड़े होते, वेदों की अलग अलग व्याख्याएं की गई, इसलिए वो सरदर्शन खड़ा हो गया। बुद्ध वचन की अलग अलग व्याख्याएं की गई, इसलिए 4 प्रकार के बौद्ध दर्शन आज खड़े हो गए, और भी जुट गए, अंबेडकर जी और भी हमारे और अरविंद और कई लोगों का जो है दर्शन क्या है उनके साथ जुट गया है, भगवान बुद्ध के साथ। तो ये अलग है। तो वहां कहा गया गीत गोविंद में, निंदसी यज्ञ विधे रहा स्तुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। निंदसी यज्ञ विधे रहा स्तुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। जय जगदीश हरे। एक मैंने बस 2 लाइन खाई, ज्यादा उठाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। एक तो एक छोटा सा, अब आप देखिए जरा, इसको उठा करके देखिए। वो कह रहे हैं केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे। हे बुद्ध, जो है यज्ञ विधि की निंदा करते हो, वेदों का विरोध करते हो, और सदय हृदय, एक अच्छी बात होगी, अर्थात दया से पूर्ण हृदय से तुमने हम पशु हिंसा को भी यहाँ दिखाया है। दर्शित पशु घातम, पकड़िए। केशव है, केशव, केशव तो भगवान विष्णु है। धृत बुद्ध शरीर, आपने बुद्ध का शरीर भी धारण किया। जय जगदीश हरे, बाद में कह दिया। अब आप जरा हमको बताइए, बुद्ध दयालु थे, सदय हृदय थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। पशु हिंसा उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने पशु हिंसा क्या, जीव हिंसा का उन्होंने विरोध किया। किसी भी जड़ जंगम की जो है हिंसा का उन्होंने विरोध किया। अब आप कहते हैं जयदेव जी, केशव ने बुद्ध का शरीर धारण किया, तो क्या ये बौद्ध धर्म को स्वीकार हो सकता है? वर्तमान बौद्ध समाज को स्वीकार हो सकता है? ये जो सुद्धोधन पुत्र शाक्य सिंह, गौतम, तथागत, सुगत, समंतभद्र, धर्मराज, कितने नाम कहें आप समझिए। 18 नाम है अमरकोश में बुद्ध के। कौन कौन बता दूं? सर्वज्ञ, सुगत, बुद्ध, धर्मराज, तथागत, समंतभद्र, भगवान भी बुद्ध का नाम है, मारजित, लोकजित, जिन और षडभिज्ञा। 6 अभिज्ञाएं सिद्ध थी उनको, और 10 प्रकार के बल थे, इसलिए उनका नाम 10 बल भी है, और उनको षडभिज्ञा भी कहा जाता है। और अद्वैतवादी, भगवान बुद्ध कैसे थे साहब? अद्वैतवादी थे। तो अद्वैतवादी का मतलब हो गया आपका अद्वैत वेदांत, जो भी कह लीजिए आप, अर्थात वो द्वैतवादी नहीं थे, अद्वैतवादी थे। षडभिज्ञा क्या है? दिव्य चक्षु, 1 नंबर 1, दिव्य नेत्र थे उनके पास, वो यहाँ विराजमान है। दिव्य चक्षु से के बल पर वो कोसों, करोड़ों, सैकड़ों दूर, कोसों दूर की बात को जो है जान लेते थे, मानव प्रवृत्ति को जान लेते थे, और वहां वो जो है पहुंच जाते थे अपने जो है। तो दिव्य चक्षु, श्रोत्र 2, पूर्व निवास अनुस्मृति, बुद्ध को पूर्व जन्म की स्मृति थी, तो स्मृति बल पर उनको अपने पूर्व जन्म के सभी जातक को अवदान में जो आए हैं, आप पढ़े हैं जातक कथाओं में, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कही गई हैं। तो वो पूर्व निवास अनुस्मृति, ये अभिज्ञा का नाम है। ये 6 अभिज्ञाएं हैं। और एक अभिज्ञा थी आत्मज्ञान, दूसरी एक अभिज्ञा थी वियत गमनम, आकाश में चले जाते थे वो भगवान बुद्ध, अदृश्य होकर के चले जाते थे। और काय व्यूह सिद्धि, उनको कायिक सिद्धि थी। तो इस प्रकार से, और इसी को कुछ दूसरे रूप में कहते हैं दान पारमिता, शांति पारमिता, शील पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता। ये 6 पारमिताएं हैं आपके, आप देख सकते हैं शांति देव के बोधिचर्या अवतार। और वहां ये भी कहा गया कि जो प्रज्ञा पारमिता को नहीं जानता है, उसका 6 अन्य जो 5 पारमिताएं हैं जो मैंने अभी आपके सामने गिनाई हैं, वो 5 प्रज्ञा पारमिता के अध्ययन के बिना, उसके ज्ञान के बिना, उसके समन्वय के बिना, उसकी भावना के बिना, उसके अभ्यास के बिना, वो जो है क्या है, अपूर्ण है। तो प्रज्ञा की महत्ता है।
और हमारे अभिधर्म कोश में बसुबंधु ने कहा प्रज्ञा मला शान चरा अभिधर्म। अभिधर्म किसे कहते हैं आपको पता है? अभिधर्म शास्त्र है ना, अभिधर्म कोश है बसुबंधु का, सुना होगा आपने। पूरा वैभाषिक सौत्रांतिक सिद्धांत है। वैभाषिकों का खंडन सौत्रांतिक के द्वारा बसुबंधु ने करा दिया वहां पर जो है। तो क्या कहते हैं कि वहां कहा कि अमला प्रज्ञा, अमला का अर्थ क्या है वहां? अविद्यमानम मलम यस्याह सा अमला, जिसमें मल, क्लेश, मोह, या कह दीजिए बुद्धिज्म के हिसाब से शास्त्रव, आश्रव, हाँ सॉरी आश्रव, आश्रव शब्द का अर्थ मल होता है, ये देखा जा सकता है। तो आश्रव तो शास्त्रव जो है, तो और शास्त्रों का उल्टा अनाश्रव, अनाश्रव का अर्थ अर्थात विशुद्ध प्रज्ञा, और शास्त्रों का अर्थ अर्थात अविद्या, आपका मल, क्लेश, राग, द्वेष। तो एक बुद्धिज्म शास्त्रों धर्म हो जाता है, एक अनाश्रव धर्म हो जाता है। उसी को दूसरी भाषा में कह दें आपको, एक संस्कृत धर्म हो जाता है, एक असंस्कृत धर्म हो जाता है। संस्कृत धर्म शास्त्रों धर्म है और असंस्कृत धर्म अनाश्रव धर्म, असंस्कृत धर्म अनाश्रव धर्म। तो वहां पर कहा उन्होंने, हमारे बसुबंधु ने अभिधर्म कोश के कौन से चैप्टर, धातु, हाँ धातु कोश पहला परिच्छेद है, जो हमारे यहाँ सिलेबस में भी है, पढ़ाया जाता है बुद्धिज्म के छात्रों। उसके बिना तो बुद्धिज्म व्यवहारिक सिद्धांत और सौत्रांतिक सिद्धांत ज्ञात ही नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि जो अनाश्रव प्रज्ञा है, सानुचरा, सानुचरा अनुचर साहित्य, नौ दास दासियों के साथ कहिए आप, तो जो प्रज्ञा के साथ और जो उसके सहयोगी धर्म हैं, सहयोगी तत्व हैं, उनके साथ जो प्रज्ञा होती है उसी का नाम है अभिधर्म। तो ये अभिधर्म की वहां पर जो है क्या है परिभाषा की गई है, प्रज्ञा मला सानुचर अभिधर्म तत्प्राप्त या पीछे यच्च शास्त्रम। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? अभिधर्म का ज्ञान कहां से होगा? कोई प्रश्न खड़ा करे, बताइए आप। बुद्धिज्म साहब, मुझे बुद्धिज्म में अभिधर्म का ज्ञान करना है, तो अभिधर्म के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, किन किन विषयों को पढ़ना पड़ेगा? प्रश्न खड़ा होगा, जिज्ञासा होगी एक अध्येता को, एक प्रखर मेधावी अध्येता को तो जरूर होगी, या अच्छे अनुसंधाता को होगी। अनुसंधाता तो नहीं मानेगा ना, ना अनुसंधाता तो जब तक उसको खोज नहीं लेगा, उसके संबद्ध भाषा शास्त्रों को और जितने वैभाषिक सिद्धांत परक शास्त्रों सबको नहीं देखेगा, तब तक वो परिपुष्ट ज्ञाता जो है अभिधर्म का विद्वान, प्रामाणिक विद्वान हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये अभिधर्म कोश में जो है प्रज्ञा का बताया। तो यहाँ हमारे बोधिचर्या अवतार का अंतिम परिच्छेद है प्रज्ञा, आपको बता दें। और बाकी में दान पारमिता, आपकी वीर पारमिता, शांति पारमिता और शील पार, जो ध्यान पारमिता, ये जो अभी मैंने 6 पारमिताएं गिना दी हैं। तो ये हो गया। और बुद्ध को बता दूं 10 बल, 10 तरह की ताकतें हैं साहब बुद्ध के पास। कौन कौन आप ले सकते हैं? दान, शील, क्षमा, वीर, ध्यान, प्रज्ञा और उपाय। बुद्ध उपाय कुशल थे। अगर आप उपाय कुशल नहीं हैं, तर्क कुशल नहीं हैं, युक्ति कुशल नहीं है, तो कितना भी आप वेद पढ़ जाइए, रामायण पढ़ जाइए, काव्य शास्त्र पढ़ जाइए, पुराण पढ़ जाइए, या आप सामाजिक शास्त्र, जो भी आधुनिक विद्याएं हैं, लौकिक विद्याएं, उनको पढ़ जाइए, आप उपाय कुशल की नींव पर खड़ा है वास्तव में बुद्धि। उपाय कौशल्य है बुद्ध के पास। और प्रणिधि का अर्थ क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ क्या है? अनुकंपना, आप समझिए, निवेदन करना, ये है। और ज्ञान है इसके बाद। तो ये बुद्ध के जो है 10 बल होते हैं। इसलिए बुद्ध का एक नाम है, मैं 10 बला के ऊपर इतनी बात कह गया, संबद्ध बात कह गया। तो ये बुद्ध जो है 10 बल है। एक बुद्ध का नाम अद्वैतवादी है, दूसरा बुद्ध का नाम विनायक। विनायक हमारे यहाँ गणेश जी भी, आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पढ़ा जाता है सुमकस्य दंतश्चो कपिलो लंबोदरस्य विघ्न नाशो विनायक है। तो विनायक नाम किसका है साहब? गणेश का है। और विनायक नाम किसका है? बुद्ध का है। तो ये आपके जो है हमारे क्या कहना चाहिए कि बुद्ध के जो है 18 नाम है इस प्रकार से।
मारजित, मारजित क्यों कहा गया? कामदेव को उन्होंने जो है पराजित किया था, तभी तो उसने बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने कहा ना, एको न मारो मुद माप लोके। बुद्ध के जन्म होने पर सारे संसार को खुशी हुई, समस्त प्रजा धन्य हो गई, सारे देवतागण आकाश में आकर आकाश में खड़े होकर फूलों की वर्षा करने लगे। यक्षाधिपा, वहां लिखा है उसमें, यक्षाधिपा सम परिवार यतस्तु, बुद्ध चरितम में आया अश्वघोष का, बुद्ध चरितम काव्य 28 सर्गों का। उसकी भी कहानी देख लीजिए, कितनी बुरी कहानी है। 14 सर्ग तक ही मिलता है, और 15 से लेकर 28 तक गोलमाल, लुप्त हो गया, काल कबलित हो गया हमारे अंग्रेजों के शासनकाल में, या जब भी हो गया हो। हाँ, इतनी बात जरूर है कि चाइनीज भाषा में और तिब्बती भाषा में 28 सर्गों का अनुवाद मिलता है, और कुछ लोगों ने उस पर कुछ जबरदस्ती भी की, कुछ प्रयास किया, और हिंदी अनुवाद और जॉन्स्टन के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर उसका अनुवाद किया, तो वो साहब मूल तो नहीं आ पाया। क्योंकि मैंने फिर बैठ करके उसको उन लोगों के साथ बैठ के मिलाया, मैंने कहा भाई इसको मिलाइए, इसके साथ न्याय होना चाहिए, और हम लोगों को इसको बैठ करके जो है क्या है 14 से लेकर के, जो 14 के अंतिम से नहीं है, 14 के बीच तक कुछ श्लोक हैं, तो 15 से लेकर सीधा 28 तक लुप्त हो गया है, बाकी इधर मूल मिलता। हाँ, शुरू के 7 श्लोक नहीं, ये भी आपको सूचना के तौर पर बता। बुद्ध चरितम जो अश्वघोष कृत महाकाव्य है, अश्वघोष को आप जानते ही है, प्रथम शताब्दी के कवि हैं, कालिदास से पूर्ववर्ती है, कनिष्क कालीन, कनिष्क के दरबार में वो जो है राज दरबारी विद्वान थे, पाटलिपुत्र में जो है अश्वघोष, और बौद्ध दार्शनिक भी हैं और काव्य शास्त्री हैं। बुद्ध चरितम सौंदर्य नंद नाम के उनके काव्य हैं, और अन्य कृतियां भी हैं, और अश्वघोष की जो है आपकी वज्र सूची भी देखिए अश्वघोष की है, आप देखेंगे। तो इस प्रकार से क्या कह रहा था मैं कि अद्वैतवादी विनायक, और एक नाम है मुनीन्द्र, श्रीघना, शास्ता, मुनि, 18 नाम बुद्ध के, और 7 नाम जो है शाक्य मुनि के। कौन कौन? शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, एक नाम है उनका सर्वार्थ सिद्ध, अर्थात सभी प्रयोजनों को, सभी कार्यों को पूर्ण करने में, सफल बनाने में और उन्हें महारत हासिल थी, इसलिए उनका नाम था सर्वार्थ सिद्ध। और एक है सौद्धोदनी, ये तो आप जानते हैं, शुद्धोदन से अपत्यम सौद्धोदनी, अत ई अदंत प्राप्त से वहां ई प्रत्यय हो गया संस्कृत व्याकरण से जो है, तो शुद्धोदन प्लस ई, ठीक है। फिर यशुहम से भाषंज्ञा, यस्य तिस्य नामे अकलो, और फिर हमारे तदिते सुचामादि पाणिनि सूत्र से शु में ऊ को औ हो, तो बन गया सौद्धोदनी। अभी ये तो नहीं बताना चाहिए मुझे व्याकरण, यहाँ पर इसका विषय नहीं है। और गौतम और अर्क बंधु, अर्क किसका नाम है? सूर्य का नाम। तो ये सूर्य वंशीय थे, इक्ष्वाकु वंशीय थे हमारे भगवान बुद्ध। बुद्ध चरितम के में पहला श्लोक आया है, इक्ष्वाकु वंशार्णव संप्रसूतः प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानाम साक्येषु साकल्य गुणाधिवासः शुद्धोदनाख्यो नृपतिर्बधूरो। ये शुद्धोदन नाम के राजा का वर्ण के साक्यों के समस्त गुणों का वो भंडार था, आप समझ जाइए, है कि नहीं। तो क्या कहते हैं, हमारे शुद्धोदन जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंश रूपी समुद्र में उत्पन्न हुए, और जैसे लोग चंद्रमा को प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, ऐसी सारी जनता, सारी प्रजा जो है राजा शुद्धोदन को चंद्रमा की तरह स्नेह देती। प्रेम आकरा, प्रेम का आकर था, वो खजाना था, भंडार था, चंद्र एवं प्रजाना। तो उनके आपके पुत्र हुए शुद्धोदन के, इसलिए बुद्ध का एक नाम पड़ गया सौद्धोदनी। सौद्धोदनी कहने से संस्कृत में देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सामर्थ्य है कि पिता का नाम भी बेटे के नाम के साथ आ जाता है। हाँ, हमने जैसे राम के लिए कहा दासरथी, तो दासरथी दशरथ कहते हैं राम के पिता को, तो दशरथ है ना, तो दशरथ से दासरथी बना दिया संस्कृत व्याकरण ने हमारे पाणिनि सूत्र से। तो दासरथी का अर्थ हो गया दशरथ राम, तो दासरथी से दशरथ राम को हम लोग ले रहे, ऐसी इनका नाम पड़ गया क्या? शुद्धोदनी। तो अब आप देखिए क्षेमेंद्र की मैं बात कर रहा था, क्षेमेंद्र का एक महाकाव्य है, नाम नोट कर लीजिए, दशावतार चरितम, क्षेमेंद्र का। उसमें विष्णु के 9वें अवतार के रूप में सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के रूप में इन्होंने बताया। अब ये कितनी गलत बात है, आप ही बताइए जरा। आप शुद्धोदन कहां से वहां था? शुद्धोदन तो था ही नहीं उस समय,
जिस समय आपके हमारे दशावतार हुए हैं, उस समय कहाँ वो था जो है शुद्धोदन। शुद्धोदन तो ईसा से 500 वर्ष पहले जो है हुआ है, और ये पहले कितनी पुरानी घटना है। तो लाकर के क्षेमेंद्र ने जो है उस शुद्धोदन पुत्र को जो है उठा करके विष्णु के नवे अवतार के रूप में जो है क्या श्लोक में दिखा दिया। देखिए, आपको मैं प्रमाण के रूप में उस दशावतार चरित्र का एक संदर्भ श्लोक का दे रहा हूं, जिसे आप सुनकर के इसे प्रूव करेंगे। शुद्धोदनाख्यस्य नराधिपेन्द्रो, शुद्धोदनाख्यस्य नराधिपेन्द्रो, धन्यस्य गर्भेव ततार पत्न्याः मायाभिधाना, मायाभिधाना नरनाथ पत्नी गर्भे हरिम विश्व गुरुम वहंती। देख लो साहब, क्षेमेंद्र भी कह रहे हैं गर्भे हरिम। अभी मैंने आपको बुद्ध के इतने 18 नाम बताए, उसमें हरि नाम आया है ना? हरि नाम तो नहीं है बुद्ध का, हरि तो विष्णु का नाम है, और हरि के अन्य अर्थ भी हैं कोश ग्रंथों में, वो आप जानते हैं। तो गर्भे हरिम, माया देवी जो है गर्भ में विश्व के गुरु हरि को धारण कर रही है। बताइए, हरि पहुंच गए, माया देवी के पेट में हरि पहुंच गए, ये क्षेमेंद्र ने ला करके दिखाया। अब आप बताइए, एक बौद्ध धर्मी व्यक्ति इतिहास को देखेगा कि नहीं है, घटनाओं को देखेगा कि नहीं, आंख बंद करके नहीं न कर देगा। तो शुद्धोदन पुत्र तो बुद्ध नहीं हो सकते हैं भैया बुद्ध नाम के दूसरे विष्णु अवतारी को बुद्ध हो सकते हैं। ये कहना है बौद्ध धर्म के वर्तमान बौद्ध धर्म समाज का, ये कहना है। लेकिन क्षेमेंद्र ने जो है उनको वहां बैठा दिया। भागवत ने तो कहीं नहीं कहा ऐसा, श्रीमद् भागवत क्यों नहीं कहा ऐसा, और ये क्षेमेंद्र उसी के आधार पर कहां से कह रहे हैं। कुछ पुराणों ने भी, बाद वाले पद्म पुराण वगैरह ने भी क्या, अग्नि पुराण वगैरह ने भी कहा। मेरे पास बहुत संदर्भ हैं, लेकिन यहाँ उनकी चर्चा की उतनी कोई शास्त्रीय थोड़ी। तो इस प्रकार से जो है क्षेमेंद्र का मत जो है, या कुछ पुराणों का मत जो है, शुद्धोदन पुत्र सिद्धार्थ या बोधि बुद्धत्व प्राप्त करने पर बुद्ध नाम से घोषित, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध नाम से घोषित बुद्ध को वर्तमान बौद्ध समाज विष्णु के नव अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए, कहते हैं गौतम बुद्ध हरि के इस तरह नवम अवतारी बौद्ध मत के अनुसार तो नहीं माने जा सकते हैं। ये मेरा जहां तक पूरा पक्का विश्वास है। लेकिन हमारी भारतीय जो सनातन परंपरा है, वो उसमें कुछ जो परवर्ती जो आए हैं, उन्होंने जोड़ दिया उसको, कहा केशव धृत बुद्ध शरीर है, केशव है विष्णु, तुमने बुद्ध का शरीर धारण किया है। लेकिन ये आप पूछिए जरा किसी एक बुद्धिज्म के व्यक्ति से कि क्या ये सही है? आप लोग मानते हैं इस बात को? जो भारतीय परंपरा के ग्रंथों में जो इतिहास आया, इतिहास तो पलट गया। हाँ, ये कहाँ से, किस आधार पर लाए हो? वो रेफरेंस दें, संदर्भ दें उसका। कहाँ से उन्होंने उठाया कि जो है ये शुद्धोदन का बेटा जो कपिल वस्तु में पैदा हुआ, ये जाकर के जो है क्या विष्णु के नौ अवतार के रूप में जो है क्या है प्रकट हुआ है, यही है वो वाला। वो दूसरा हो सकता है कोई, वहां जो 10 अवतार का वर्णन किया गया है, भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो ये भी देखिए एक विषमता है। क्या आज खुले रूप में बौद्ध धर्म के समाज को और सनातन हिंदू धर्म समाज को क्या बैठ करके इस विषय में उन ग्रंथों को रख करके, उन शास्त्रों को रख करके या उन पर शोध करा करके क्या आज वर्तमान समाज को इसको न्यारा व्यारा नहीं करना चाहिए? इसका निर्णय नहीं करना चाहिए कि जो हमारे उसमें आ गया हम उसी को मानेंगे? ये बौद्ध मत तो नहीं स्वीकार करता है। बौद्ध मत तो कहीं नहीं कह रहा है कि विष्णु का अवतार है कौन, बुद्ध जो है। तो ये बात है। तो बुद्ध जो है, अब हम बात करें तो ऐसी कुछ समस्याएं भी हैं, आपसे बताएं। दार्शनिक समस्याएं, कुछ ऐतिहासिक समस्याएं हमें जिन पर खुले रूप में तटस्थ दृष्टि से बैठ करके विद्वत समाज को आज विचार करना चाहिए। अच्छा साहब, अब मैं, बुद्ध तो महाकरुणा के सागर हैं, ये आप जानते हैं। करुणा ही उनका एक ऐसा शस्त्र है। करुणा नहीं है तो मैंने कहा वो बुद्ध नहीं है, आप समझ जाइए। चित्तोत्पादा परार्थाय, ये संदर्भ दे रहा हूं।
चित्तोत्पादा परार्थाय सम्यक संबोधि कामता। सम्यक संबोधि की जो कामना है ना, बुद्धत्व प्राप्त करना या बुद्धि चित्त का उत्पाद करना, जो भी कह लीजिए आप, हैं, वो जो है क्या कहते हैं, परार्थ के लिए है। बुद्धि चित्त का उत्पाद पर कल्याण के लिए, परहित के लिए जो है उसका उत्पाद किया। तो परहित कैसे होगा? करुणोत्पाद से। तो वो बोधि चित्तोत्पाद का अर्थ, जो बोधि जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसका है? करुणा का। इसलिए बौद्ध धर्म जो है करुणा मूलक धर्म है, ये जान लेना चाहिए। जहाँ करुणा नहीं है वहां बुद्धिज्म का स्पर्श भी नहीं, चाहे वो कितना भी बुद्धिज्म जानता हो, पढ़ता हो, लेकिन वो दयालु नहीं है, परम कारुणिक नहीं है, तो समझिए उसे बौद्ध धर्म से कोई फायदा होने, लाभ होने वाला नहीं। हाँ, आज आप एक बात जरूर है कि अगर हम कुछ, मान लीजिए हम हिंदू धर्म के हैं, आप किसी दूसरे धर्म के हैं, कोई विरोध नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी परंपराओं का निर्वाह, आप अपने हिंदू धर्म के संस्कारों के अनुसार, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, आप उनका निर्वाह करिए। बौद्ध धर्म को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना ना ना, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो कहते अपने धर्म का पालन करें सब लोग। लेकिन जो शिक्षा है, अगर शिक्षा वचन आपके जीवन में चरितार्थ होते हैं, आपको दयालु बनने के लिए बौद्ध धर्म परिश्रम करता है, यत्न करता है, अभ्यास करता है, मेहनत करता है, आपके अंदर करुणा का उद्रेक करने के लिए अगर वो एक यात्रा करता है, मेहनत करता है, तो आपको वहां झुकना पड़ेगा और करुणावान बन, क्योंकि बिना करुणोत्पाद के आप दयालु नहीं हो सकते हैं और आप पर कल्याण नहीं कर सकते। सर 5 मिनट में थोड़ा वाइंड अप करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, समय हो रहा है क्या? जी, बस क्योंकि अगले सेशन भी प्रारंभ करना। 5 मिनट और ले है। लीजिए, कोई बात। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये बुद्ध जो है महाकरुणा के प्रतीक हैं, ये आप समझ लें। और बौद्ध धर्म, बौद्ध महायान धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ललित विस्तर है, ये आप लिख लीजिए। बुद्ध की ललित जीवन क्रीड़ाओं का वर्णन है। इसमें हीनयानी सर्वास्तिवादी शाखा का वर्णन भी उपलब्ध होता है। यह ग्रंथ 27 भागों में, भाग के लिए वहां परिवर्त शब्द आया, नोट कर लीजिए, चैप्टर के लिए परिवर्त शब्द आया, तो 27 परिवर्तों में विभक्त है। इसमें देवता भगवान बुद्ध से पृथ्वी पर अवतीर्ण होने का निवेदन करते हैं। इस ग्रंथ का समय भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। एक बार जैसा कि इसमें लिखा है, एकदा भगवान बुद्धा सावस्थ्यामनाथ पिंडत चेते जेतवने द्वादश सहस्त्रई भिक्षुवी साधम विहरति। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडत के क्षेत्र जेतवन में 12,000 भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो उससे देवता तक स्वर्ग में दिव्य विमान में थे। तभी बुद्ध जब पैदा हुआ तो 84,000 दुंदुभी, जानते हैं नगाड़ा, नगाड़ा को दुंदुभी कहते हैं। 84,000 दुंदुभी की आवाज जब हुई तब वह पृथ्वी पर पैदा हुई, ऐसा भी ललित विस्तर में उल्लेख मिलता है। और माया देवी के लिए लिखा है कि 10,000 हाथियों की शक्ति माया देवी के अंदर थी, वही बुद्ध के प्रजनन में समर्थ थी। और उनके जन्म के समय आपने जैसा बुद्ध चरितम में पढ़ा, शीत, उष्णता, वात, ताप, रोग समाप्त हो गए। अब धर्मराज बुद्ध कैसा होता है, ये मैं बताऊं आपको जो है धर्मराज बुद्ध के बारे में। त्रातापि दीपोसी परायणोसी नाथोसी लोके कृप मैत्र चित्तो वैद्योत्तमस्त्वं खलु शल्यहर्ता चिकित्सकस्त्वं परमं हितंकरः। धर्मराज बुद्ध कृपा रूपी मित्रता के चित्त वाला होता है, अर्थात बौद्ध धर्म मैत्री चित्त को उत्पन्न करता है। आप में मित्रता का प्रभाव नहीं, मित्रता का भाव नहीं है, तो आप बौद्ध धर्म के नहीं हो सकते हैं और बौद्ध धर्म के पथ पर आप नहीं चल सकते। इसलिए मित्रता, मैत्री, करुणा, मुदिता आदि को प्रदान करने वाला जो है बौद्ध धर्म है। और भगवान बुद्ध रोग हरता भी है, ऐसा मत समझिए खाली वो धार्मिक उपासना करता है, योगी है, साधक है, तपस्वी है, चिकित्सक है, डॉक्टर है वो। धर्मराज बुद्ध चिरकाल से अज्ञान में सुप्त संसार को प्रज्ञा प्रदीप से जगाता है। वही बुद्ध चिरकालिक सांसारिक रोगियों की वजह से व्याकुल जब हो जाता है तब वह सभी प्रकार की व्याधियों का प्रमोचक बन करके वैद्यराज कहलाता है। और आपसे बताएं, अशोक के योगदान को, अशोक प्रियदर्शी के योगदान को भी बौद्ध धर्म समाज कभी नहीं भुला सकता है। अशोक के अवशिष्ट कार्य को हमारे कुषाण ने पूरा किया
और अशोक की पुत्री जो संघमित्रा और महेंद्र ने श्रीलंका में जो है हीनयानी पाली ग्रंथों को लिपिबद्ध कराया। कनिष्क ने बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को दरबारी कवि बनाया और बौद्ध धर्म वाङ्मय का केवल संस्कृत में ही नहीं अभी तो विश्व की अनेक भाषाओं में और मैं बता दूं आपको अनुवाद हुआ, जिसका अनुसरण फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, जापानी, अमेरिकी, इटालियन और रशियन तक जो है लोगों ने इसमें काम किया। और फिर जाकर के जो है आप अगर विद्वानों की बात करें तो उसमें कार्ल हर्न, विंटरनिट, जैकोबी, टॉमस, कीथ, गर्नर, ब्योडो आदि ने उल्लेखनीय कार्य किया। प्राचीन विद्वानों में नाम लें आप तो जोसलेकर, लोकुल, जगन्नाथ प्रसाद सोवेनी, भंडारी, सुकरात, हरप्रसाद शास्त्री, पीएल वैद्य, बलदेव उपाध्याय, भरत सिंह उपाध्याय, आचार्य नरेंद्र देव और संक्षेप में हरदत्त शास्त्री आदि के बौद्ध धर्म विषयक योगदान को भी बौद्ध धर्म समाज कभी नहीं भुला सकता है। इस प्रकार चीनी यात्री इत्सिंग जब 7वीं सदी में भारत आया तो उसने कहा था कि भारत में अश्वघोष बौद्ध कवि के गीत गाए जा रहे हैं। अश्वघोष ने पेशावर में पार्श्व नामक बौद्ध भिक्षु के साथ शास्त्रार्थ किया। अपने उसमें विजयी पार्श्व हुए तो पार्श्व से अश्वघोष ने दीक्षा ले ली और उन्होंने 10 वर्ष तक कनिष्क राज्य में दरबारी विद्वान के रूप में निवास किया पाटलिपुत्र में। और जो है लामा तारानाथ का आप देखे होंगे बौद्ध धर्म के इतिहास में, तो लामा तारानाथ ने 3 अश्वघोषों की चर्चा की है। और बुद्ध चरित महाकाव्य में उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रादौ च ससर्ज पत्यम जग्रंथ यन्न च्यवनो महर्षि चिकित्सितम यच्च चकारनात्रि पश्चात तदात्रे ऋषि जगत। कहने का मतलब आप ये समझिए कि जब शुद्धोधन को हुआ कि साहब कुआं बन गया अपने आप ऑटोमेटिक, वहां जाकर के लोग पूजा करने लगे। बड़े बड़े काले सांप जो अतीत बुद्धों में अधिकार रखते थे वो मदार के फूल लेकर बुद्ध के ऊपर चढ़ाने लगे तो शुद्धोधन को बड़ा अचंभा लगा, ये क्या है, ऐसे सबके बेटे पैदा हो रहे हैं, वहां तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तब उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा अरे वाल्मीकि ने लिखा संस्कृत में सबसे पहला श्लोक, क्या उसके पहले च्यवन नाम का ऋषि पैदा नहीं हुआ था, वो क्यों नहीं लिख पाया? तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि विलक्षण लक्षणों से संपन्न असाधारण व्यक्तित्व संपन्न कोई भी पुण्यवान व्यक्ति कभी भी किसी क्षण में, आज भी मैं कहता हूं, बुद्ध हो सकता है या बुद्ध के जैसे विलक्षण तपस्वी व्यक्ति अनंत संचित पुण्यों के बल पर आज भी जो है क्या है उत्पन्न हो सकते हैं। और वो अश्वघोष के उसी अश्वघोष के देखिए बुद्ध चरित्र में असित मुनि ने शुद्धोधन के विषय में भविष्यवाणी की थी, लोकस्य नेता तव पुत्र भूतो दुखार्दिता नाम भुवि एष त्राता। तुम्हारा पुत्र संसार का नायक बनेगा जो दुखी पीड़ित लोगों की रक्षा करेगा। तो शुद्धोधन के तपोवन गमन से रोकने पर सिद्धार्थ ने जानते हैं क्या कहा था, अगर मेरा जीवन मरण के लिए ना हो, मुझे कोई बीमारी ना हो, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए, जवानी मेरा दमन न यौवन का मेरा दमन ना हो, अर्थात जवानी मेरी नष्ट ना हो, ना ही कहीं कोई विपत्ति हो, तब मैं पिताजी तपोवन नहीं जाऊंगा। तो जब शुद्धोधन के पास उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अभिनिष्क्रमण को बनाया। और फिर आपने देखा एक वृद्ध व्यक्ति और एक रोगी व्यक्ति आप जानते हैं, और एक मृत व्यक्ति का जो साक्षात्कार हुआ और छंदक ने जो बताया उनको जो है रूपस्य हन्ति व्यसनम बरस, ये जो है जरा अवस्था क्या करती, रूप को नष्ट कर देती है। जो जो अवस्था बीतती जाएगी आपका रूप जो है क्या है नष्ट होता चला जाएगा। तो ये उन्होंने देखिए बताया। तो कहने का हमारा मतलब है कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसके बल पर हम आज भी जो मिसाइलों की होड़, जो पारस्परिक राग द्वेष और जो एक विस्तारवादी देश दूसरे लघु देशों पर जो कब्जा करना चाहता है, अगर हम बौद्ध धर्म का दीपक सर्वत्र जला दें तो पारस्परिक विषमता, कट्टरता और भेदभाव, जातिवाद, कदाचार, नारी अवमर्दन, हमारी माता बहनों का अपमान जो है, इस धर्म के बल पर मेरा जहां तक विश्वास है
बहुत आसानी के साथ जो है किया जा सकता है यदि हम इसमें क्या कहते हैं कि आगे आए, आगे बढ़ें, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए बुद्ध के और हमारे जातक ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, इनको अनिवार्य रूप से आज कोर्स में लगाना चाहिए। क्षेमेंद्र का अवदान कल्पलता 108 अवदान है, आपसे बताऊं, संस्कृत पद्य में है, उनको भी कोर्स में लगाना चाहिए। और पाली में जो हमारे ग्रंथ हैं जातकों के पहले जो हुए हैं, उनको भी, जहां देखिए हमारे पंचतंत्र हितोपदेश का प्रचार हुआ, तो आज हमारे जातक माला में हंस जातक, काक जातक, बक जातक, वानर जातक, महिष जातक, पशु सस जातक इत्यादि जो है 34 बौद्ध जातक कथाएं, और इनका अनुवाद जानते हैं आप, 10वीं शताब्दी में चीनी भाषा में हो गया। आर्यशूर का काल भी आप देखें, आर्यशूर बौद्ध कवि जातक माला के जो लेखक हैं, प्रणेता हैं जातक माला नाम की किताब के, उनका जो है तीसरी से चौथी शताब्दी के बीच समय है। तो बुद्ध जो है कहते हैं शांतियो, कि बुद्ध कहते हैं कि ना मुझे ना तो आपको अगर कहीं से सत्कार सम्मान मिलता हो छोड़ दीजिए, आपकी कहीं पूजा मिल रही हो छोड़ दीजिए, और आपको कहीं सम्मान मिल रहा हो छोड़ दीजिए, लेकिन आप क्या ना छोड़िए। तो कह रहे हैं लाभा नश्यन्तु मे कामम सत्काया काय जीवितम मात सर्वम क्षयम यातु मात चित्तम कदाचित्। कहते हैं सत्कार नष्ट हो जाए, हमारे अनंत पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन आपका चित्त दूषित ना हो। तो भगवान बुद्ध का ही एक ऐसा धर्म है जो चित्त संशोधन पर, चित्त शुद्धि पर और बोधि चित्त के उत्पाद पर आपसे बताएं ध्यान दे। वो कहते हैं जैसे केले का फल पेड़ एक बार लगा देता है, तो फल देने के बाद उस केले के पेड़ में द्वारा जो है फल देने की ताकत नहीं होती है, लेकिन हमारा ऐसा जो है बोधि चित्त नहीं है। बोधि चित्त क्या है? रत्न है। बुद्ध जो धर्म संघ जो रत्न है, वो जो है ऐसा नहीं है। जो है क्या है, इस प्रकार से क्या है बात करते हैं। मैंने कहा हिता संसन मात्रेणो बुद्ध पूजा विशिष्यते। हमने आज अनेक भाषाओं की पारस्परिक मित्रता है। विश्व की कोई भाषा नहीं है जिसमें बुद्ध का संदेश हो। चीनी, तिब्बती, फ्रेंच, नेपाली, भूटानी, बर्मी, मंगोलियन, जर्मन, जापानी, मागधी, सौर सैनी, अंग्रेजी आदि भारतीय सीमांत भाषाओं को किन्नौरी ले लें आप, लद्दाखी, अरुणाचली, मणिपुरी, सिख आदि भाषाई समाज को अगर जोड़ा है, साथ एकता का सूत्रपात किया है, अगर इनको मिलाया है तो मिलाया है बौद्ध धर्म ने। और जो है बौद्ध धर्म ने ही जो है जिस मानव धर्म का, मानव मूल्यों का, नैतिकता का जो संदेश आज विश्व को दिया, और विश्व शांति, मैत्री और करुणा का पाठ पढ़ाया, आज उसी के बल पर हम सांसारिक अशांति, विद्वेष, राग, क्लेश, संकीर्ण प्रवृत्तियों से आज हम पूरे मानव विश्व समाज को बचा सकते हैं। इसी धर्म ने विश्व समाज से हमारा नाता जोड़ा है। विश्व भाषाओं में इसी धर्म ने पहुंच बनाई है और विशाल जो है वांग्मय का प्रतिनिधित्व किया है। जयतु बुद्धा, जयतु भारतम, जयतु संगोष्ठी, जयंतु बोधिसत्वों की जय हो, बुद्ध की जय हो, और समस्त विद्वानों की जय हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ, यद्यपि मैं अभी और भी कहता, और भी बातें बताता, लेकिन एक समय सीमा होती है और उसका पालन हमें करना पड़ता है, चाहिए। बौद्ध धर्म की अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस आशा के कि यदि मेरे वक्तव्य में कहीं अतिरोचना, अतिशयोक्ति, कुछ अप्रियता, कुछ कटुता और कुछ आपको कहीं किसी अंश में अप्रसन्नता हुई हो, तो मुझे क्षमा करेंगे। वो कहते हैं ना कि यहाँ कहा जाता है कि मक्खन मक्खन हंस दे लेता है, दूध दूध निकाल लेता है, पानी को जो है क्या है
छोड़ देता है। तो विद्वान लोग तो गुणों को ले लेते हैं और उसमें जो कुछ थोड़ी बहुत पक्ष होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, अप्रिय लगते हैं, सब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहा गया है। हर मुंड मुंड में, सिर सिर में बुद्धि अलग अलग होती है। तो इस हिसाब से कभी कभी आधार अच्छी। धन्यवाद प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी। मैं एक बार अपने साथी परितोष मित्तल जी से अब आग्रह करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ें। Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to thank Professor Dharamdat Chaturvedi ji for his enchanting and thought-provoking talk. His guidance and knowledge will help us improve our personal self also. His great contribution, as he has told us, in restoration of 50 literary composition, which is a big achievement, otherwise which would have been lost to the world, are now available for research and studies to us. And this personally makes me feel enriched as a countryman of India. As you know, that DIC is a center for Buddhist research also. The information shared by Professor Dharamdat Chaturvedi ji will be of great help in creating a repository here at DIC. Sir, we look forward for many more interactions with you in future. Thank you so much, sir. Now I would like to thank our member secretary, Shrimati Upma Srivastava ji, for providing us the opportunity to commence this national conference here at DAIC. It has been because of her astounding leadership that we are able to commence this e-conference in this pandemic also. I also thank our academic team at DAIC, Dr. Varun Gulati and Dr. Devendra Singh, Dr. Sunil, for conducting this e-conference, and our audience as well as the postdoctoral fellows to join us in this conference. I hope for a regular interaction in times to come, and I thank you all and each one of you for this good conference that we had today. Thank you so much and a very good afternoon to you all. Thank you, Paritoshji. So it's an information to all the participants that for technical session, we'll be joining sharp at 2. Before that, we have a lunch break. It's wonderful to have a lunch at your home. Thank you so much for joining us in this session today.